Good evening and welcome all. Today we are going to read very important chapter, chapter 6, startups and intellectual property. Most of the businessmen, when they have started the business, they are come to know that there are a lot of benefits available to the startups. And what is the intellectual property? That also we'll discuss in this chapter. Anjali madam, she is reading in English. After reading in English, I am explaining in Hindi with examples. Anjali madam is content writer and she is also editor of this book, Know Your Balance Sheet. Over to you, Anjali madam. You can start reading the book. Thank you. Thank you, Chair sir, and welcome everyone. So chapter 6, startups and intellectual property. Very interesting and useful chapter for everyone, especially entrepreneurs. So a startup is a young company that is just beginning to develop. Startups are usually small and initially financed and operated by a handful of founders or one individual. These companies offer a product or service that is not currently being offered elsewhere in the market, or that the founders believe is being offered in an inferior manner. So how to incorporate your business? First and foremost, incorporate your business as a private limited company or a partnership firm or a limited liability partnership. You have to follow all the normal procedures for registration of any business, like obtaining the certificate of incorporation or partnership registration, PAN, and other required compliances. Register with Startup India. Then the business must be registered as a startup. The entire process is simple and online. All you need is to do log on to the Startup India website and fill up the form with details of your business and upload certain documents. So what are these documents? Documents to be uploaded in PDF format only. First is a letter of recommendation or support. A letter of recommendation must be submitted along with the registration form. Any of the following is valid. First is a recommendation regarding innovative nature of business from an incubator established in a postgraduate college in India in a format specified by the Department of Industrial Policy and Promotion, DIPP, or next page, a letter of support by an incubator which is funded in relation to the project by the Government of India as part of any specified scheme to promote innovation, or a letter of recommendation regarding innovative nature of business to form an incubator recognized by the Government of India in DIPP specified format, or a letter of funding not less than 20% in equity by any incubation fund or angel fund or private equity fund or accelerator or angel network, duly registered with SEBI, that endorses innovative nature of the business, or a letter of funding by Government of India or any state government as part of any specified scheme to promote innovation, or a patent filed and published in the journal by the Indian Patent Office in areas affiliated with the nature of the business being promoted. So these are the letters of recommendation formats. Next is incorporation or registration certificate. You need to upload the certificate of incorporation of your company or LLP, registration certificate in case of partnership. So what are the tax benefits for a startup? Startups are exempted from income tax for 3 years. But to avail these benefits, they must be certified by the Inter-Ministerial Board, IMB. Startups recognized by DIPP, that is the Department of Industrial Policy and Promotion, Government of India, can now directly avail IPR, that is the intellectual property rights,
related benefits without requiring any additional certification from IMB. Next, so how does a startup get loan? Startup loan headed by SIDBI, that is Small Industries Development Bank of India. Eligibility, enterprises in trading, manufacturing or services. In the case of non-individual enterprises, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by an SC or ST or a woman entrepreneur. The borrower should not be in default with any bank or financial institution. Overview. This scheme by the Indian government facilitates bank loans between 10 lakh rupees to 1 crore rupees to at least one SC or ST borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up of a greenfield enterprise. So tax holidays for companies, that is startups. A company or limited liability partnership incorporated and holding a certificate of eligible business from the notified ministerial boards of certification will be allowed 100% deduction of profits and gains derived from such business for 3 consecutive assessment years. The deduction may be at the option of the assessed and can be claimed for any 3 consecutive assessment years out of 7 years, beginning from the year in which the company or limited liability partnership is incorporated. If the turnover does not exceed the prescribed limit as mentioned in the Income Tax Act. Intellectual property. So what is the meaning of intellectual property? The term intellectual property rights, IPR, refers to the legal rights granted with the aim to protect the creations of the intellect. These rights include industrial property rights, example patents, industrial designs, and trademarks, and copyright, right of the author or creator, and related rights, rights of the performers, producers, and broadcasting organizations. Next. So what's a copyright? Copyright is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture, and films to computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings. So what are patents? A patent is an exclusive right granted for an invention. Generally speaking, a patent provides the patent owner with the right to decide how or whether the invention can be used by others. In exchange for this right, the patent owner makes technical information about the invention publicly available in the published patent document. And what are trademarks? A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks date back to ancient times when artisans used to put their signature or mark on their products. What are the advantages of intellectual property rights? Enhance the market value of your business. Intellectual property rights can generate income for your business through licensing, sale, or commercialization of protected products or services. This can in turn improve your market share or raise your profits. In case of sale, merger or acquisition, having registered and protected IP assets can raise the value of your business. Turn ideas into profit-making assets. Ideas on their own have little value. However, IP can help you to turn ideas into commercially successful products and services. Licensing your patents or copyright, for example, can lead to a steady stream of royalties and additional income that can boost your business bottom line. Next, market your business products and services.
IP is essential in creating an image for your business. Think trademarks, logos, or the design of your products. IP can help you differentiate your products and services in the market and promote them to your customers. Access or raise finance for your business. You can monetize your IP assets through sale, licensing, or using them as collateral for debt financing. As well as this, you can use your IP as an advantage when applying for public or government funding, that is grants, subsidies, or loans. Enhance export opportunities for your business. IP can increase your competitiveness in export markets. You can use brands and designs to market goods and services abroad. Seek franchising agreements with overseas companies or export your patented products. So these are some of the advantages of IPR. So to conclude, nice saying, be not afraid of growing slowly. Be afraid of standing still. So with this, we conclude this very useful, interesting chapter of startups. Over to you, HR sir. Thank you, madam. Thank you, madam, and thanks to all. These very important chapters, startups and intellectual property. आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को इतना पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने को क्या क्या करना है। मीन्स प्रोप्राइटरी कंपनी के लिए एक शॉपेट लिया, उद्यम आधार लिया, बिजनेस स्टार्ट हो गया। पार्टनरशिप फॉर्म के लिए पार्टनरशिप डीड रजिस्ट्रेशन किया, LLP के लिए LLP फॉर्मेशन किया, कंपनी के लिए कंपनी फॉर्मेशन करके लिया और बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है स्टार्टअप नया बिजनेस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और उनका जो ब्रांड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करने से उनको बहुत सारे प्रॉफिट भी मिलने वाला है। आपका जब ब्रांड बनेगा यू आर गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट। वंस यू गेट जनरेट योर बिजनेस गुडविल, आपको उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाला है। हम लोग अभी स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे। स्टार्टअप मीन्स जस्ट कंपनी जो स्टार्ट होता है, लाइक इवन इन्फोसिस एंड एप्पल कंपनी, वो भी छोटा से स्टार्ट हुआ। इन्फोसिस स्टार्ट विथ 4 computers and 2 tables, like Apple also started with like this only. स्लोली वो लोग ग्रोथ हुआ है। ऐसे स्टार्टअप का मीनिंग वही है, जब बिजनेस आप स्टार्ट करते तो उसी हिसाब से स्टार्ट होता है। बट स्टार्टअप बोले तो हर एक लोग ऐसे सोचता है कि कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। हर एक आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे उनको माइंड में ये है मेरा बिजनेस स्टार्टअप है, मेरे को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बट हर एक को वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। किसके लिए वो बेनिफिट मिलने वाला है? आप जब कंपनी स्टार्ट करेंगे, आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस ऑफर कर रहे वो नॉट करेंटली बीइंग ऑफर्ड एल्सवेयर इन द मार्केट, मींस वो मार्केट में किधर भी नहीं होना चाहिए। आप किधर की कॉपी पेस्ट करके बिजनेस नहीं करना है। आपका खुद का एक इनोवेशन होना चाहिए, खुद का एक उनका प्रोडक्ट का नाम आप खुद डेवलप करना चाहिए, आप खुद प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, तो ही आपको ये स्टार्टअप का बेनिफिट्स आपको मिलता है। उसके लिए क्या करना है आपको? इनकॉर्पोरेट ऑफ योर बिजनेस, कंपनी आपको फॉर्म करना है। इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। आपको कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पार्टनरशिप फॉर्म करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना है, LLP करना है एंड बाकी प्रोसीजर भी आपको फॉलो करना है। जैसे आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो बाय डिफॉल्ट आपको पैन और टैन मिल जाता है, बट बाकी LLP और आपका पार्टनरशिप फॉर्म है आपको पैन टैन GST के लिए आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करना? स्टार्टअप का एक वेबसाइट दिया हुआ है, जैसे लोग आप सोचा मेरा बिजनेस है, मैं कुछ इनोवेशन कर रहा हूँ। इनोवेशन मीन्स जैसे व्हाट्सएप है, जैसे एक ऐप है, वो सब जनरल लोगों के लिए यूटिलाइज हो रहा है और वो मार्केट में ऑलरेडी नहीं है। आप ऑलरेडी उसको पेटेंट करके रखा हुआ है। वो इनोवेशन से आप किधर से कॉपी पेस्ट करके बिजनेस नहीं कर रहे, उनके लिए ये स्टार्टअप का बेनिफिट्स मिलने वाला है। मेरे को बहुत सारे लोगों का फोन आता है, सर मेरा अभी बिजनेस स्टार्टअप हुआ, मैंने किधर तो पढ़ा, मेरे को टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे नहीं मिलने वाले। स्टार्टअप के लिए बहुत सारे कंडीशंस दिया हुआ है आपको टैक्स एग्जम्पशंस लेने के लिए। वो कंडीशंस क्या क्या है हम लोग एक डिटेल्स में जाएंगे। आपका स्टार्टअप का वेबसाइट में जाना है,
उसके साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना है, जैसे रिकमेंडेशंस ऑफ द रिगार्डिंग इनोवेशंस नेचर ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है वो इनोवेशन है बोल के प्रूव होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। आपने जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो मार्केट में ऑलरेडी नहीं है, आप किधर भी कॉपी पेस्ट आपने नहीं किया हुआ है, उसके लिए वो प्रूव होने के लिए आपको सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है लेटर ऑफ सपोर्ट बाय इनक्यूबेटर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्ट ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम टू प्रमोट द इनोवेशंस। आपका जो गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसके अंडर आपने प्रमोशन और डेवलपमेंट आप काम कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा स्टार्टअप का आपको एप्लीकेशन करते टाइम पे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टू फॉर्मेट इनक्यूबेटर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डीआईपीपी। जो भी डीआईपीपी का आपका रिकॉग्नाइज्ड ये है उसका स्कीम के अंदर आपने काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक लेटर जोड़ना पड़ेगा। सपोज आपका बिजनेस में कोई एंजल इन्वेस्टर है, कोई प्राइवेट इक्विटी फंड है, मोर देन 20% उनका इन्वेस्टमेंट है, आपका बिजनेस स्टार्टअप के लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट किया, उसका भी आपको एक सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा आपका स्टार्टअप का पोर्टल पे जब आप एप्लीकेशन करेंगे। लेटर ऑफ फंडिंग बाय गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपको कुछ स्पेसिफाइड स्कीम के लिए एक तो आपको प्राइवेट इक्विटी 20% से ज्यादा आया हुआ है, नहीं तो आपको गवर्नमेंट का स्कीम में आपको फंड मिला हुआ आपका प्रोडक्ट इनोवेशन है बोल के आप डेवलपमेंट करने के लिए, वो भी आपको सर्टिफिकेट आपको जो उसका साथ में एप्लीकेशन के साथ में जुड़ाना बहुत जरूरी है। पेटेंट फाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय इन द जर्नल बाय द इंडियन पेटेंट ऑफिस। आपका जो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट जब आप पेटेंट राइट के लिए आप एप्लीकेशन करेंगे, उसका भी पेटेंट का जो आप एप्लीकेशन किया पेटेंट का कुछ आपका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आया हुआ है वो भी आपका प्रोडक्ट के साथ में एप्लीकेशन के साथ में जुड़ाना चाहिए। उसके साथ में आपका कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, मींस आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या एलएलपी है, उसके साथ में वो भी डॉक्यूमेंट जुड़ा के आपको स्टार्टअप का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अप्रूव हुआ तो आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलने वाला है। टैक्स बेनिफिट, स्टार्टअप के लिए क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलने वाला है? स्टार्टअप के लिए 3 इयर्स के लिए टैक्स बेनिफिट्स है। उसके लिए क्या कंडीशंस है? दैट मस्ट बी सर्टिफाइड बाय इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड। जो आपका बिजनेस है वो सर्टिफाइड होना चाहिए इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड से। और स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय डीआईपीपी, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रमोशंस। आपका जो बिजनेस है वो स्टार्टअप बिजनेस है और वो इनोवेशन रिलेटेड बिजनेस है। आपका ऐसे नहीं आप किधर से कॉपी पेस्ट, नहीं तो जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनका ही बिजनेस आपने कर रहे हैं, यू कैन नॉट गेट द टैक्स बेनिफिट। और आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉपीराइट आई मीन पेटेंट राइट्स आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके साथ में वो भी डॉक्यूमेंट आपको देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टार्टअप के लिए लोन भी मिलता है। बहुत सारे लोगों को स्टार्टअप होने के बाद ओनली दिस इज रिलेटेड टू इनोवेशन। बाकी लोगों के लिए बहुत सारे अलग स्कीम है, हम लोग बहुत सारे बुक्स में पढ़ा हुआ है। ये जो स्टार्टअप से स्पेसिफिकली फॉर स्टार्टअप एंड इनोवेटेड रिलेटेड जो बिजनेस है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दैट इज सिडबी आपको लोन के लिए हेल्प करेंगे। एंड एलिजिबिलिटी क्या है आपका बिजनेस का जो ये है उसका एलिजिबिलिटी क्या क्या है? अपने ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में होना चाहिए। इन द केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग कंट्रोल वो SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए होना चाहिए। इसका मेन प्रमोशन का मेन है, उनका मेन पर्पज ये है ये सिडबी का लोन का, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होना चाहिए। SC ST लोगों का प्रमोशन, उनका जो फाइनेंशियल ग्रोथ करने का पर्पज है उनके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज दिया हुआ है। आपका सपोज एक शेयर होल्डिंग कोई भी इसमें 51% से ज्यादा है तो आपको इसका लोन फैसिलिटी भी मिलेगा। This scheme is governed by Indian government, facilitate bank loans between 10 lakhs to 1 crore. आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन मिलने वाला है। इफ SC ST are borrowed for women borrower per bank per branch for greenfield enterprises means आपका कुछ greenfield बिजनेस अपने greenfield के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो आपको 10 लाख to 1 करोड़ रुपीस भी आपको सिडबी की तरफ से लोन मिलने वाला है। टैक्स हॉलीडेज फॉर अ कंपनीज, whatever your queries that we'll discuss last, sir, please we'll wait for end of the sessions. Otherwise, after completing of this chapter, we'll take the question answer sessions. Tax holiday for companies. Company के लिए tax holiday कब मिलेगा? Means company limited by partners, limited liability partnership or private limited company that will be approved by the ministerial board. सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो आपको 100% टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कितना साल के लिए मिलेगा? आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में मिलेगा। आउट ऑफ दी 7 इयर्स आप 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर कौन सा भी स्टार्ट कर दिया, आप स्टार्टिंग में से ले लीजिए नहीं तो एंड पे ले लीजिए। टोटल आपको 7 ईयर पीरियड पे आपको मैक्सिमम 3 इयर्स का 100% टैक्स बेनिफिट मिलेगा, सब्जेक्ट टू आपने ऊपर का सब कंडीशंस आपने फुलफिल किया तो। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है?
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीनिंग्स ऐसे होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स में तो पेटेंट्स में आपने रजिस्ट्रेशन करके लिया, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में होता है। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया कुछ XYZ से और आपने कुछ लोगो बना दिया, बट वो लोगो रजिस्ट्रेशन नहीं करता था स्टार्टिंग में, सबको पता नहीं रहता ये लोगो भी रजिस्ट्रेशन होता है। आपका कौन सा भी लोगो रहने दीजिए, आपको ये चेक करना है, आपको वो रजिस्ट्रेशन करके लेना है। रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो सेम लोगो दूसरा कोई यूज कर रहे हैं क्या, ये बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपको आ सकते हैं। इन फ्यूचर में आप सपोज कॉर्पोरेट से बिजनेस स्टार्ट किया, आपने कुछ लोगों से बिजनेस आपने स्टार्ट किया, इन फ्यूचर में आपको लगता है कि मेरे को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना है, तो आप जो लोगो है, आप कंपनी का नाम से कुछ आपका XYZ है, XYZ का आपने जो लोगो बनाया, तो लोगो के हिसाब से आपको कंपनी का नाम भी आगे मिल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये सब आपका जो भी लोगो है आपको रजिस्ट्रेशन करके लेना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें कॉपीराइट बोले तो क्या। Copyright is legal term used to describe right and creator of the literature, artistic works. Works covered by copyright range from book, music, painting, sculpture and films to computer program, database. ये जो कॉपीराइट है ये सब चीज के लिए आपको कॉपीराइट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा बुक्स भी कॉपीराइट है, ये कोई दूसरा कोई इसको कॉपी नहीं कर सकते, हम लोग ऑलरेडी इसको कॉपीराइट्स बनाया हुआ है। ऐसे आपका भी जो प्रोडक्ट है, बुक्स है, आपका जो म्यूजिक है, पेंटिंग है, आपने जो शिल्पकला आपने जो स्टैचू बनाया हुआ है, जो आपने फिल्म्स बनाया हुआ है, आपने कुछ कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया हुआ है, डाटाबेस है, एडवर्टाइजमेंट है, मैप्स है, टेक्निकल ड्राइंग्स, ये सब चीजें आप कॉपीराइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इस आपकी राइट्स जो है आप उसको रजिस्टर करके दूसरा लोग आपका पैरेसी करके आप यूज वो नहीं कर सकते। अभी जैसे हमने मूवी में देखता है रजनीकांत ने जो उनका जो सिगरेट का जो घुमाने का जो स्टाइल है उसका भी उन्होंने कॉपीराइट करके रखा था। आपने देखा कौन सा भी मूवी में वो कॉपी नहीं कर सकते। ऐसे कॉपीराइट करने में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। अभी मेरा क्लाइंट्स कुछ लोग ऐसे है, दे आर ओनली डूइंग कॉपीराइट्स, मींस उन्होंने कुछ नाम के लिए सपोज एक मिरेकल नाम है, मिरेकल नाम को उन्होंने कॉपीराइट बना के उनको ब्लॉक करके रखते। इन फ्यूचर में वो सेल भी कर सकते, उसको 4 लाख 5 लाख रुपीज के लोग बेचते हैं। उनका काम ही वही है, कॉपीराइट करके लेना, रखना और किसी को रिक्वायरमेंट रहे तो वो बेचना। ये भी सबसे एक अच्छा बिजनेस है, कॉपीराइट्स बना के रख के आप उसको बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके लिए खुद का बिजनेस का तो कॉपीराइट आपको बना के आगे जाना बहुत जरूरी है। आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो आपका पेंटिंग है, म्यूजिक है, बुक्स है, वो दूसरा लोग कॉपी नहीं कर सकते। पेटेंट्स क्या होता है, इसको जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपने कुछ इनोवेशन किया, आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट सबके लिए यूज है, बट वो इनोवेटिव, सबको यूनिक से आपका खुद ने बनाया, उसको मार्केट से आप किधर से कॉपी नहीं किया हुआ। आपने क्या किया, बहुत सारे इनोवेशंस किया, आपका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा। ऐसे आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, उसका पेटेंट राइट भी आप ले सकते। पेटेंट राइट लेने से आपका कोई भी आपका फॉर्मूला है, आपका डिजाइन से दूसरा कोई इसको यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपने कुछ इनोवेशंस किया, उसको पेटेंट्स भी करना बहुत जरूरी है। ट्रेडमार्क्स आपका जो गुड्स एंड दिस इज द साइन ऑफ कैपेबल डिस्टिंग्विश गुड्स और सर्विसेज। अभी मेरा बुक्स जो नो योर बैलेंस शीट है, हम लोग नो योर बैलेंस शीट जो नेम है उसके लिए भी हम लोग ट्रेडमार्क्स का फाइल किया हुआ है। उसका जो भी अभी केस हियरिंग चालू है, विल गेट इन शॉर्टली इन 2-3 मंथ्स में अपने को ट्रेडमार्क्स मिल जाएगा उसका। जैसे आपका नाम है, आपको ट्रेडमार्क आप रजिस्ट्रेशन करके वो भी नाम दूसरा कोई यूज नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके आप आपका नाम ब्लॉक कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या क्या फायदा होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बहुत सारे फायदा है, अभी हमने बताया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करने से वैसे जैसे बहुत सारे लोग क्या करते, बिजनेस में सिर्फ बिजनेस करते रहते, दे आर नॉट थिंकिंग टू मेक देयर ब्रांड। जैसे अभी येवले चाय पहले क्या था, अभी क्या चाय वाला बना रहे, चाय तो वही है, सिर्फ उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बनाया, उन्होंने जो नेम बनाया, उसका बहुत लोगों का फायदा उसमें से कैसे हो रहा है। उसके लिए बहुत सारे लोग जब बिजनेस स्टार्ट करा तो उनका ब्रांड के बारे में कभी नहीं सोचता है, तो डायरेक्टली दे विल स्टार्ट द बिजनेस। उसके लिए जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ब्रांड के साथ में बिजनेस करने से बहुत आपको फर्क पड़ने वाला है। जैसे अभी बाटा शोरूम में बहुत सारे जो ब्रांडेड है, उसके लिए आपको जब ब्रांड रहते तो लोग ज्यादा उसमें बार्गेनिंग नहीं करते। जैसे एप्पल फोन से, ये जो ब्रांड से जो लोग खरीदी करता है, ऐसे आपको आपका बिजनेस का ब्रांड करने के लिए भी आपको बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटी करना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये सब प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो फायदा है, अभी आपका जो ब्रांड बनते, जब आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने से आपको क्या क्या फायदा है, हम लोग इन डिटेल्स में जाएंगे।
टर्न आइडिया इनटू मेकिंग द असेट्स। जैसे आपने पेटेंट रजिस्ट्रेशन किया, कॉपीराइट किया, ट्रेडमार्क आपने रजिस्ट्रेशन करके लिया, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर असेट। अभी मैंने बताया वो रजिस्ट्रेशन करके वो 5 लाख को भी वो बेच सकते हैं जिसका रिक्वायरमेंट रहे, तो उसको आपने जो असेट्स बना के उसके ऊपर भी आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसका कमा सकते हैं। मार्केट योर बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे आपका एक ब्रांड हो गया, एक लोगो हो गया, आपका कुछ डिजाइन हो गया, तो आपको मार्केटिंग करने में बहुत इजी हो जाता है। अभी योले चाय सबको पता है, पहले कितना टी शॉप था, अपने को इतना ध्यान में नहीं रहते, बट अभी जैसे इतना फ्रेंचाइजी थी, मोर देन 300 फ्रेंचाइजीज उनका योले चाय का फ्रेंचाइजीज हुआ है, और अच्छा तरफ से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लगाया, उतना बिजनेस अच्छा चल रहा है। उसके लिए आपको मार्केटिंग करने में भी ब्रांड का रजिस्ट्रेशन रहा तो बहुत ईजी हो जाएगा। और एक्सेस आर रेज फाइनेंस फ्रॉम योर बिजनेस। जैसे आपका ब्रांड हुआ तो बहुत सारे लोग बाहर का लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाएंगे आपको, जैसे एंजल इन्वेस्टर है, वैसे आपका बहुत सारे लोग इन्वेस्टर आ जाते हैं। इवन बैंक भी आपको ब्रांड देके आपका फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। इसके लिए क्या फायदा होगा आपको, जो बैंक से लोन लेना है, जो इंटरेस्ट पे करना है, वो सब बर्डन आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी इधर इन्वेस्टर्स बहुत सारे लोग आ जाएगा आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ओनली आपका बिजनेस ब्रांड रजिस्ट्रेशन हुआ तो। एनहांस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर बिजनेस। ऑफ कोर्स बाकी सबके साथ में आपका बिजनेस जब आप ब्रांड के ऊपर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो भी आपका रिकॉग्नाइजेशन एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट आपका ब्रांड से बहुत फर्क पड़ेगा। उसके लिए अपना सजेशन है, जो भी आपको बिजनेस करना है, जो भी आपको ग्रोथ करना है बिजनेस में, तो यू स्टार्ट विथ योर ब्रांड। मीन्स आपका जो भी कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स जो बनाना है, स्टार्टिंग में बना के आपका एक नाम ब्रांड बना के खुद का ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप आगे इन फ्यूचर में एक बार ब्रांड बनाया तो आप भी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, आपका बिजनेस में भी बहुत सारे ग्रोथ होगा, तो आपका एक्सपोर्ट में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। उसके लिए ब्रांड के साथ में बिजनेस करना बहुत जरूरी है। स्टार्टअप के लिए भी आप ये सब कंडीशन भी फुलफिल करके सर्टिफिकेट लिया तो ऑफकोर्स आपको 3 इयर्स का टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। तो हम लोग अभी एक कोट के साथ ये चैप्टर्स क्लोज करेंगे। बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड फॉर स्टैंडिंग स्टिल। मीन्स आपको ग्रोथ धीरे धीरे हो तो भी चलेगा, बट आप ग्रोथ को रुकना नहीं चाहिए। आपका बिजनेस का ग्रोथ, आप नॉट ओनली बिजनेस, आपका पर्सनल भी ग्रोथ, अभी जैसे अपना पर्सनल ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, एंड प्रोफेशनल बिजनेस का जो ग्रोथ है, अपना जो भी ग्रोथ है, आप एवरी डे एटलीस्ट 1% भी आप खुद का ग्रोथ किया तो भी 365% आपकी इधर ग्रोथ होता है। एवरी ईयर यू कैन ग्रो 365% एज कंपेयर टू दोज हु आर नॉट रेडी टू चेंज, नॉट रेडी टू ग्रोथ। उसके लिए एवरी डे एटलीस्ट 1% आपकी इसमें चेंज होना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आपका बिजनेस का, आपका थॉट्स का, आपका पर्सनालिटी, आपका हेल्थ, ये सब चीजें एटलीस्ट 1% एवरी डे आप खुद ग्रोथ किया तो ईयर एंड में आपका ग्रोथ होता है 365%। इट इज वेरी ह्यूज ग्रोथ। उसके लिए आपको ग्रोथ एवरी डे करना, एवरी डे नया सीखना, नया थॉट्स लेना, नया नया बिजनेस के बारे में ग्रोथ करने के लिए कैसे हम लोग क्या करेंगे, ये सब सोच के बिजनेस ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबको ग्रोथ का बारे में सोच के खुद का डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। Anjali madam, now you can start with chapter 7, subsidies and MSME funding. Before that, hand raise. If you have any queries, please again raise the hand. I will unmute and you ask the question. Otherwise, you start the next chapter. Have any queries? Otherwise, you can start reading, madam. Please. Okay, thank you, HR. That was a great explanation. Thank you, madam. I hope everyone benefits from it. Yeah. So now we'll have a look at subsidies and MSME funding. So the ceiling on loans under the SIDBI subsidy scheme is elevated to rupees 1 crore. The amount of subsidy is 15%. The admissible capital subsidy in credit lending subsidiary scheme is to be computed with reference to term loan paid to the recipient, not the purchase price of machinery and plant. These are two important points to be kept in mind. The objective of SIDBI scheme is to facilitate technology upgrade by offering 15% upfront capital subsidy to the SSI units. The scheme envisages financial assistance
to food processing units in the form of grant in aid as under. 35% of the eligible project cost subject to a maximum of 5 crore rupees in general areas. 50% of the eligible project cost subject to a maximum of 5 crore rupees in northeastern states, including Sikkim and difficult areas including Himalayan states like Himachal Pradesh, J&K, and Uttarakhand. State notified ITDP areas and islands. Next is NSI. Members of MSME receive help by way of financing the purchase of raw materials, both indigenous and imported, under the scheme called Raw Material Assistance Scheme, so that MSMEs can focus on manufacturing quality. IPS, Industrial Promotion Subsidy. The quantum of subsidy will be linked to the fixed capital investment. Payment of IPS every year will be equal to 25% of any relevant taxes paid by the eligible unit to the state or to any of its departments or agencies. Next is NABARD loan for food processing industry. NABARD loan for food processing is available for a wide range of post-harvest process resulting in value addition and obligor enhance storage life of food product. The following food processing activities such as cleaning, grading, waxing, controlled ripening, labeling, packing and packaging, warehousing, cleaning, freezing, freeze drying, and more are eligible under the scheme. The products of processing or manufacturing undertaken by the units may include fruits, vegetables, mushrooms, plantation crops, and other horticulture crops, milk and milk products, poultry and meat, fish and other aquatic and marine products, cereals, pulses, oilseeds and oil crops, consumer food products such as bakery items, confectionery, etc. Any other ready-to-eat food, etc. Under the NABARD Food Processing Fund, term loan is provided by NABARD either directly or in consultation with other lenders. Term loan is provided by NABARD at concessional rate of interest. NABARD provides a term loan up to 75% of project cost for corporate companies, joint ventures, and individual entrepreneurs. So a thought on this, government's intention for giving subsidies is to boost working capital of the budding entrepreneurs. So next, we'll see how women entrepreneurs are benefited. Encouraging women to become financially independent, the government has introduced several schemes that offer various benefits to the women entrepreneurs. Mudra Yojana scheme. This scheme is for small units and is also applicable to women who want to start a small enterprise, such as a beauty parlor, etc. It is also useful for a group of women who want to start up together. Loans from rupees 50,000 onwards and up to rupees 50 lakhs are sanctioned under this scheme. Collateral and guarantors are required only if the loan amount exceeds 10 lakh rupees. There are 3 plans under this. Shishu plan, where loans up to rupees 50,000 for new businesses are given. Kishore plan, loans between 50,000 and rupees 5 lakhs for well-established enterprises. And Tarun plan, loans between 5 lakhs and 10 lakh rupees for business expansion are given. TREAD, that is Trade-Related Entrepreneurship Assistance and Development Scheme. So this scheme aims to empower women by providing credit to projects, conducting specific training and counseling, and eliciting information on related needs.
The scheme provides for a government grant of up to 30% of the total project cost as appraised by lending institutions. These institutions would finance the other 70%. Mahila Udyam Nidhi scheme, offered by Small Industries Development Bank of India, SIDBI. This scheme provides financial assistance of up to 10 lakh rupees to set up a new small scale venture. It also assists with upgrading and modernization of existing projects. The loans are to be repaid within 10 years, and this includes a 5-year moratorium period. Further, interest rates on these loans can vary according to market rates. Annapurna scheme. This scheme applies to women entrepreneurs who have started a food catering unit. They can avail a loan of up to 50,000 rupees to purchase kitchen equipment such as utensils and water filters. A guarantor is required to secure the loan. After securing the loan, it can be repaid in 36 installments. Further, interest rates under this scheme, as per prevailing rates and assets, will be taken as collateral by the concerned bank. Next is Stree Shakti package for women entrepreneurs. It is offered to women who have majority ownership of over 50% in a small business. The women also need to be enrolled in the Entrepreneurship Development Programs, EDP, organized by their respective state agency. Under the scheme, an interest concession of 0.05% can be availed on loans above 2 lakh rupees. Next is Bharatiya Mahila Business. Bank loan under this scheme involves a loan of up to 20 crores for women business owners of manufacturing enterprises. Under the Credit Guarantee Fund Trust for micro and small enterprises, there is no need for collateral for loans up to rupees 1 crore. The loans under this scheme are to be repaid in 7 years. The scheme was implemented by Bharatiya Mahila Bank, which was merged with State Bank of India in 2017. Dena Shakti scheme. This scheme provides loans up to 20 lakh rupees for women entrepreneurs in agriculture, manufacturing, microcredit, retail stores, or similar small enterprises. There is a concession of 0.25% on rate of interest. Under the scheme, loans up to rupees 50,000 are offered under the microcredit category. Next is Udyogini scheme. Women entrepreneurs between the ages of 18 and 45 who are involved in agriculture, retail, and similar small businesses can avail loans up to 1 lakh rupees under this scheme. Further, her family's annual income should be below 45,000 rupees in order to avail the loan. Next page. However, no income limit exists for widowed, destitute, or disabled women. For widowed, destitute, or disabled women from SC/ST categories, a subsidy of 30% of the loan up to 10,000 rupees is provided. Next is Cent Kalyani scheme. Offered by the Central Bank of India, this scheme is for women business owners in multiple areas such as agricultural work or retail trading. Under this scheme, loans up to 1 crore rupees are sanctioned and no collateral or guarantors are required. Interest rates on loans depend on varying market rates. Next is Pradhan Mantri Awas Yojana. Under this scheme, Government of India provides affordable housing to poor people. Eco-friendly construction methods are used for the benefit of the urban poor population in India. So, beneficiaries of these schemes.
Beneficiary family should not own a house either in his name or any of his family members' name. Features of Pradhan Mantri Awas Yojana. PMAY scheme provides subsidy interest rate at 6.50% per annum on housing loan for the term of 20 years to all the beneficiaries. Differently abled and senior citizens are given preference in allocation of ground floors. Sustainable and eco-friendly technologies are used for construction. What is MSMEs and its benefits? Micro, small and medium enterprises, that is MSMEs, contribute largely in the socio-economic development of our country. MSMEs come under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and are required to be registered to avail benefits under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act. MSME registration is highly important as it enables these enterprises in availing benefits from various government-initiated schemes. MSMEs are classified in two categories, such as manufacturing and service enterprises. So let's see benefits of MSME registration. MSME registration helps in getting government tenders. Under bank loan, 15% import subsidy on fully automatic machinery. Becomes easy to get licenses, approvals, and registrations irrespective of field of business. Compensation of ISO certificate expenditure helps in getting low interest rates. Interest on loan offered to MSMEs is 1 to 1.5% lower compared to typical business loan interest. Registered MSMEs get tariff subsidies and tax and capital subsidies. Gets exemption under direct tax laws in case of startups after fulfilling conditions. Loans without collaterals. Subsidy on patent registration and industrial promotion. Overdraft facility along with interest rate exemption. Concession on electricity. Enterprises having MSME registration certificate can avail concession on electricity bills by filling the appropriate form. Protection against delayed payments. ISO certification charge reimbursement. Easy access to credit. PM Modi has introduced the Mudra loan scheme, which provides loans to MSME or SSI without collaterals. Avail 50% subsidy on patent registration. Enterprises having MSME registration can avail 50% subsidy for patent registration. So with this, we end chapter 7 on MSMEs and subsidies. Thank you very much. Over to you, HR sir. Thank you. सब्सिडीज एंड एमएसएमई फंडिंग भी बहुत सारे बिजनेस में आपको सब्सिडी मिलता है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे सिडबी आपको सपोज आपने नया प्लांट एंड मशीनरी लिया तो आपको 15% का सब्सिडी मिलता है। ऐसे बहुत सारे वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे लोन स्कीमें सब्सिडीज है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उसके लिए हम लोग कुछ कवर्स किया हुआ बुक्स में आपका जो सब्सिडीज कौन सा मिलता है और फंडिंग आपको एमएसएमई के लिए कैसे आपको फंडिंग मिलता है और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने से आपको क्या क्या फायदा होगा, हम लोग ये चैप्टर्स में देखेंगे। द सीलिंग ऑन लोन सिडबी सब्सिडी स्कीम अप टू 1 करोड़ आपको लोन मिलेगा और 15% आपको सब्सिडी भी मिलता है इसमें। जैसे आपका जो पहले कैसे स्कीम था, जैसे आपने कुछ 1 करोड़ रुपए का आपने लोन लिया तो आपको 1 करोड़ का आपने मशीनरी लिया और 75 लाख आपने लोन लिया तो भी आपको 1 करोड़ के ऊपर आपको सब्सिडी मिलता था। मीन्स आपको 15 लाख पहले सब्सिडी मिलता था। अभी गवर्नमेंट ने स्कीम वो चेंज किया, मीन्स आपका मशीनरी कॉस्ट के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलने वाला है,
आपने जितना लोन लिया उसका 15% आपको मिलने वाला है, मीन्स आपको 75 लाख के ऊपर आपको 15% सब्सिडी मिलने वाला है। The object of SIDBI scheme is to facilitate technology upgradation, offering 15% upfront capital subsidy. सब्सिडी गवर्नमेंट आपको क्यों देगा, तो आपका बिजनेस स्टार्टअप करते टाइम में आपका कुछ लिक्विडिटी जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस देके आपका जो वर्किंग कैपिटल का जो प्रॉब्लम्स होता है वो सॉल्व होना चाहिए, आपका बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, उसके लिए आपको गवर्नमेंट ने बहुत सारे सब्सिडी देता है। अभी एज ए बिजनेसमैन आप सब्सिडी उसको कैसे यूज करके बिजनेस ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे हम लोग जब बिजनेस कोई बिजनेस का ऐसे रहते कि सर ये बिजनेस आप क्यों चालू करना चाहते, तो बोलते हैं कि सर उसमें 50% सब्सिडी है, उसके लिए बिजनेस करना है। एक्चुअली सब्सिडी के लिए आपको बिजनेस नहीं करना है, सब्सिडी आपको एक वर्किंग कैपिटल आपका हेल्प लेके आपको बिजनेस ग्रोथ करना, ये मेंटेलिटी रख के बिजनेस करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए गवर्नमेंट जो बिजनेसमैन के लिए बूस्ट करने के लिए आपका सब्सिडी का ये स्कीम आया हुआ है, वो आपका अच्छा तरफ से उसका फायदा लेके बिजनेस ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भी बहुत सारे सब्सिडीज है, जैसे 35% ऑफ एलिजिबल प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 करोड़ आपको लोन्स मिलता है और 35% तक आपको सब्सिडी मिलता है उसमें, और 50% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 करोड़। ये कुछ स्पेसिफिक स्टेट के लिए ये सब्सिडी दिया हुआ है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये सब जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड के लिए उधर जो बिजनेस ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ने उधर सब्सिडी स्कीम्स लेके आया हुआ है। NSIC means National Small Industrial Corporations का जो मेंबर्स है MSME should also help by way of financing the purchase of raw material। जो NSIC जो है वो आपको रॉ मटेरियल लेने के लिए फंडिंग के लिए आपको हेल्प करेंगे। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको मटेरियल, सपोज आपको इंडिया में मटेरियल लेना है, क्या बाहर से आपको मटेरियल लेना है, तो आपको ये NSIC भी आपको बिजनेस का रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए ये हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी, ये जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, इसमें 25% ऑफ द रेलेवेंट टैक्स पेड बाय द एलिजिबल यूनिट्स। जो यूनिट्स है ये IPS स्कीम सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होते, स्पेसिफिक एरिया दिया हुआ है, अपने जो भी टैक्सेस पे किया हुआ है वो टैक्सेस का 25% भी आपको इधर सब्सिडी मिलता है। नाबार्ड लोन फॉर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग नाबार्ड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। फूड प्रोसेसिंग में अच्छा तरफ से आपको सब्सिडी भी मिलता है, बहुत सारे सपोर्ट्स भी आपको मिलने वाला है उसमें, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसे इंडस्ट्री है उसको एंड ही नहीं है। अपने को अभी बहुत सारे लोगों को पता चला हुआ है, अभी कोविड की सिचुएशन में कुछ जो बेसिक इंडस्ट्री जैसे मेडिकल है, छोटा होटल से जो भी वो कैसे बिजनेस में वो लोग ग्रोथ किया हुआ है, उसके लिए फूड इंडस्ट्री जो भी है वो बहुत अच्छा बिजनेस है। उसके लिए भी बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सपोर्ट्स मिलता है। नाबार्ड के लिए नाबार्ड भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज सच एज आपका क्लीनिंग है, ग्रेडिंग, वैक्सिंग, कंट्रोलिंग, लेबलिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग, क्लीनिंग, फ्रीजिंग, इस बहुत सारे एक्टिविटी जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसका सब आपको पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी जो भी होता है उसका जो भी एक्टिविटी करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, आपको स्टोर करने के लिए, ये सब के लिए नाबार्ड ने बहुत सारे हेल्प करता है, उसका बहुत सारे सब्सिडी भी आपको मिलता है। The product of processing manufacturing undertaking by this may include आपका fruits है, vegetable, mushroom, plantation crop and other horticulture crops, milk and milk product, poultry and meat, fish and other aquatic marine products, cereals, pulses, oil, जो भी agriculture related जो भी है वो सबका प्रोसेस करके पैकिंग करना है, आपको स्टोरेज करना, उसके सब की एक्टिविटी के लिए नाबार्ड आपको हेल्प करता है, मीन्स उसका फंडिंग भी देते हैं और बहुत सारे सब्सिडी भी आपको मिलने वाले हैं। अंडर द नाबार्ड प्रोसेसिंग food processing fund, term loan is provided by the NABARD either directly or in conjunction with other lenders। एक तो नाबार्ड क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली फंडिंग करते हैं, नहीं तो थ्रू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आपको नाबार्ड फंडिंग फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी के लिए आपको देता है। 75% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आपको, जैसे 25 दूसरा बैंक के लिए भी वैसे ही रहते, आपको 25% ओन मनी डालना चाहिए, 75% आपको एक तो नाबार्ड देगा, नहीं तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन देंगे। गवर्नमेंट इंटेंशन फॉर गिविंग द सब्सिडी इज टू बूस्ट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। जैसे आप नया स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ गवर्नमेंट का भी एक इंटेंशन रहता है, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को कैसे हम लोग उसको सपोर्ट करें बिजनेस का, क्योंकि उनसे उनको भी टैक्स मिलता है, उसके लिए उधर उनका भी एक मोटिव रहता है। जैसे जितना बिजनेस ग्रोथ हुआ, जितना लोग बिजनेस किया, उनका टैक्स भी गवर्नमेंट को मिलता है, उसके लिए एक सब्सिडी आपको एक अच्छा तरफ से हेल्प हो जाएगा। उसका रीजन से गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दिया हो रहती है, उसको प्रॉपर यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बुक्स में सबसे इम्पोर्टेंट और एक हमने कवर किया हो तो वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट मिलता है। अभी बहुत सारे हम लोग देखते हैं तो दे आर आल्सो जैसे इधर वुमन एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत सारे आगे गए हुए सक्सेस हुआ है, बट बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, उधर बहुत सारी स्कीम्स है उनको छोटा छोटा बिजनेसमैन, ये जो बुक्स में लिखा हुआ है जो भी स्कीम है जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस लोगों के लिए, बड़े लोगों को तो फाइनेंस ऑटोमेटिक उनको मिल जाता है, बट ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। उसके लिए उनका रीच होना चाहिए, जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस चालू करना चाहते तो उनको क्या क्या स्कीम है पता नहीं है, उसका रीजन से ये बुक्स में बहुत सारे स्कीम्स लिखा हुआ है, वो हम लोग डिस्कशंस करेंगे। Encourage women to become financially independent. The government has introduced several schemes. जैसे वुमेन लोग एंटरप्रेन्योर्स बनाने का रीजन उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, खुद पैसे कमाना चाहिए, उसका मोटिव के हिसाब से बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स आया हुआ है। मुद्रा योजना स्कीम, this scheme is small units also applicable to women who want to start entrepreneurs such as beauty parlor। जैसे बहुत सारे ट्रस्ट लोग भी काम करते हैं, जैसे ट्रस्ट में बहुत सारे फंड आते हैं गवर्नमेंट को वुमन एंटरप्रेन्योर्स में, तो नॉर्मल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रमोट करना चाहिए वो ट्रेनिंग देके आपको फंडिंग का भी वो लोग कुछ ट्रस्ट हेल्प करते हैं, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे आपको ब्यूटी पार्लर चालू करना है तो आपको ट्रस्ट बहुत सारे स्कीम में उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग देके सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट के बाद आप लोन लेके आप खुद का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ग्रुप ऑफ वुमेन हु स्टार्ट टुगेदर, अब बहुत सारे लोग मिलके बिजनेस भी करना है उसके लिए बहुत यूजफुल है। 50,000 एंड ऑनवर्ड्स अप टू 15 लाख तक आपको इसमें लोन मिलने वाला है। कोलेटरल एंड गारंटर्स आर रिक्वायर्ड ओनली अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। 10 लाख से ज्यादा आपको चाहिए तो आपको गारंटर और कोलेटरल सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। ये हो गया मुद्रा योजना स्कीम। देयर आर 3 प्लान्स अंडर दिस स्कीम। ये स्कीम में टोटल 3 प्लान है, शिशु प्लान, किशोर प्लान एंड तरुण प्लान। इसमें 50 लोन अप टू 50,000, शिशु प्लान में लोन अप टू 50 to 5 लाख रुपीज, किशोर प्लान में और तरुण प्लान में 5 लाख to 10 लाख रुपीज आपका बिजनेस एक्सपेंशन में मिलता है। उन्होंने 3 कैटेगरी किया हुआ है, 50,000 to 10 लाख रुपीज। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहते सर जब हम बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे को मुद्रा लोन्स नहीं मिलता है, तो आपका एलिजिबिलिटी आपका ट्रैक रिकॉर्ड मिलके 50,000 to 10 लाख रुपीज आपको बैंक्स देना ही है, ये मैंडेटरी है। आपको सपोज ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है, आप बैंकर जाके आप बैंक मैनेजर को प्रेजेंट करके आप कैसे बिजनेस करेंगे, आप कैसे प्रेजेंट आप रीपेमेंट कैसे करेंगे, आप सपोज जस्टिफिकेशन दिया आपको डेफिनेटली 10 लाख रुपीज मुद्रा लोन देना ही है। ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट स्कीम भी है, उसमें ये स्कीम एम्पावर द वुमेन बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट प्रोजेक्ट्स, कंडक्टिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग and eliciting information related needs. The scheme provide government grant up to 30% of total project। आपको 30% तक गवर्नमेंट स्कीम पे आपको ग्रांट देंगे, बाकी 70% तो आपको लोन लेना है। इसके सबसे मींस इनडायरेक्टली आपको 30% इसमें सब्सिडी, ये स्कीम में ट्रेड स्कीम में आपको सब्सिडी मिलने वाला है। महिला उद्यम निधि स्कीम, दिस स्कीम ऑफर्ड बाय स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट सिडबी, ये सिडबी का स्कीम है महिला उद्यम निधि स्कीम। इसमें आपको अप टू 10 लाख रुपीज तक आपका बिजनेस के लिए लोन मिलने वाला है आपका प्रोजेक्ट के लिए, एंड ये लोन है वो आप 10 इयर्स में आप रीपेमेंट इसको कर सकते हैं, मींस 5 इयर्स इसमें मोरेटोरियम होता है और फर्दर इंटरेस्ट जो भी वो मार्केट के हिसाब से चेंज होता है। मींस आपको टोटल 5 इयर्स का आपको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। मोरेटोरियम पीरियड मींस उस पीरियड में आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, आपको प्रिंसिपल पे नहीं करना है। अन्नपूर्णा स्कीम, जैसे आप छोटा सा केटरिंग एक्टिविटी चालू करना है तो आपको कुछ किचन इक्विपमेंट्स चाहिए, यूटेंसिल चाहिए, वाटर फिल्टर चाहिए, जो भी आपका केटरिंग के लिए जो बिजनेस के लिए मशीनरी लगेगा, आपको अन्नपूर्णा स्कीम में 50,000 तक भी आपको लोन्स मिलता है। इसका जो लोन रीपेमेंट का जो टेन्योर है वो 36 मंथ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो भी मार्केट का रेट चालू है आपको उस हिसाब से इस स्कीम से। अन्नपूर्णा स्कीम में जो लोग केटरिंग चालू करना, जो लोग मेस चालू करना है उनको, उसके लिए अन्नपूर्णा स्कीम इज द वेरी बेस्ट स्कीम। स्त्री शक्ति पैकेज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज ऑफर्ड वुमेन हैव मेजॉरिटी ओनरशिप। आपका सपोज अभी हम लोग ऊपर डिस्कशन किया, आपका 51% से ज्यादा आपका स्टेक है, मींस आपका स्टेक्स ऊपर हम लोग जो डिस्कशन किया नाबार्ड किसमें SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सबको सपोज 51% से ज्यादा आपका स्टेक है तो आपको इंटरेस्ट कंसेशन है 0.05% आपको इंटरेस्ट का कंसेशन है, लोन अमाउंट अबाउट 2 लाख हुआ। तो अभी हम लोग बिजनेस में देखते हैं बहुत सारे लोग लेडीज डायरेक्टर्स भी उसमें बिजनेस में होता है,
तो रीजन वही है, एक तो उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देना है और दूसरा बहुत सारे गवर्नमेंट का जो बेनिफिट्स है वो भी उनको लेना उनका इंटेंशन होता है। भारतीय महिला बिजनेस बैंक लोन अंडर दिस स्कीम इनवर्ड्स रुपीज अप टू 20 करोड़ तक आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए ये स्कीम है भारतीय महिला बिजनेस। और इसका अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज देयर इज नो नीड कोलैटरल सिक्योरिटी अप टू 1 करोड़ रुपीस। आपको 1 करोड़ तक इधर कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं लेने का जरूरत नहीं है और 20 करोड़ तक आपको मैक्सिमम इसमें लोन मिलता है। इसको 7 ईयर का टेन्योर होता है। ये जो स्कीम है भारतीय महिला बिजनेस, ये महिला बैंक्स का स्कीम है और वो एसबीआई में मर्ज होगा बिकॉज एसबीआई इज द वेरी बिग बैंक और ऐसे बड़ा स्कीम वो वही कर सकते हैं। उसके लिए वो 2017 में उन्होंने मर्ज करके ये स्कीम ऐसे कंटिन्यूस रखा हुआ है। देना शक्ति स्कीम, देना शक्ति स्कीम प्रोवाइड अप टू रुपीज 20 लाख फॉर वुमेन एंटरप्राइज फॉर एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी माइक्रो एंड रिटेल स्टोर्स सिमिलर स्मॉल एंटरप्राइज। देयर इज अ कंसेशन ऑफ 0.25% on rate of interest. Under these schemes, 50,000 are offered under the micro credit categories. देना शक्ति स्कीम में भी आपको 20 लाख रुपए तक आपको लोन मिलने वाला है। उद्योगिनी स्कीम्स, उद्योगिनी स्कीम में आपका 18 to 45 इयर्स का जो वुमन एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए ये लोन्स का स्कीम है। और रिटेल स्कीम ये लोन अप टू 1 लाख आपको अंडर दिस स्कीम पे मिलने वाला है। उद्योगिनी स्कीम पे आपको 1 लाख तक ये लोन मिलने वाला है। और जो फैमिली का इनकम है वो 45,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको ये स्कीम का लोन नहीं मिलने वाला। इसमें कुछ लोगों का एक्सेप्शन है, उनका 45,000 का क्राइटेरिया नहीं है। वो कौन है? वो विडोज है एंड डिसेबल लोग है, SC ST कैटेगरी लोगों के लिए सब्सिडी अप टू 30% भी मिलेगा। आप उनका इनकम के लिए भी कैटेगरी उनका तो कंडीशंस नहीं है, आपको सब्सिडी अप टू 10,000 और 30% ऑफ लोन आपको मिलने वाला है। सेंट कल्याण स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक का स्कीम है। अंडर दिस स्कीम रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए अप टू 1 करोड़ आपको ये मिलेगा, लोन मिलेगा विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी, जो भी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ये होगा वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो भी सब्सिडी मिलता है। इधर बहुत सारे हम लोग डिटेल्स में बात कर रहे हैं, तो आपको कुछ इसमें डाउट्स है तो आप मेरे को एक तो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप ग्रुप में भी पोस्ट करते हैं इसका रिलेटेड, जिससे को ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स में इंक्वायरी चाहिए तो। और दूसरा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो जिसका घर नहीं है उसके लिए स्कीम चालू हुआ। उसके लिए कंडीशंस यही है, अफोर्डेबल हाउस उनको देना है, तो उसका उनका कंडीशंस वही है। जो बेनिफिशियरीज है उनके लिए खुद का घर नहीं होना चाहिए और उसके लिए जिसका घर नहीं है उनके लिए अफोर्डेबल स्कीम में कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा उनको 6.5% से 20 ईयर का रीपेमेंट रहेगा। सपोज उस स्कीम में कोई सीनियर सिटीजन है, कोई डिसेबल है, उनके लिए फर्स्ट फ्लोर का प्रायोरिटी उनको घर देना ही चाहिए अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में। और उसमें इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी भी यूज होना चाहिए वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में। बहुत सारे लोगों को MSME सर्टिफिकेट लेने में क्या क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अपना जो GDP का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो MSME बिजनेस से ही होता है। बट उनका बेनिफिट क्या होगा? MSME में रजिस्ट्रेशन करने से क्या क्या बेनिफिट होगा? MSME रजिस्ट्रेशन मीन्स पहले जैसे उद्योग आधार था, अभी हो गया उद्यम आधार। जैसे आपने उद्यम आधार ले लिया आपका बिजनेस का, पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटी के लिए उद्यम आधार था, अभी सब ट्रेडिंग सब के लिए उद्यम आधार अभी आप ले सकते। आपको MSME एक्ट में आपको कंसिडर किया जाता है। आप MSME रजिस्ट्रेशन करने से आपको क्या क्या फायदा होगा? एक तो आपको MSME रजिस्ट्रेशन हेल्प गेटिंग द गवर्नमेंट टेंडर्स। जैसे आपको गवर्नमेंट टेंडर लेना है तो MSME रजिस्ट्रेशन लेने से आपको ज्यादा फायदा होगा। और बैंक लोन में आपको 15% इंपोर्ट सब्सिडी मिलेगा। सपोज आपने कुछ मशीनरी इंपोर्ट किया तो MSME सर्टिफिकेट से आपको सब्सिडी भी मिलने वाला है। इजी टू गेट लाइसेंस एंड अप्रूवल रजिस्ट्रेशन, आपको जो भी लाइसेंस लेना है, कुछ रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर एग्जांपल GST रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी IEC कोड लेना है तो MSME सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। कॉम्पेंसेशन ऑफ ISO सर्टिफिकेट एक्सपेंडिचर, आपको जब आप ISO सर्टिफिकेट के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस किया रहे थे उसमें भी आपको कुछ कंसेशन मिलता है आपको MSME सर्टिफिकेट हुआ तो। एंड आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आप MSME के लिए 1 to 1.5% आपको इंटरेस्ट का भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एंड MSME गेट्स टैरिफ सब्सिडीज एंड टैक्स एंड कैपिटल सब्सिडीज, जैसे हमने स्टार्टअप के लिए डिस्कशन किया, उसके लिए भी आपको MSME में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और यू गेट टैक्स एग्जम्पशंस फॉर स्टार्टअप्स फॉर फुलफिलिंग द कंडीशंस। आपका स्टार्टअप में भी आपको एग्जम्पशन लेना है तो भी आपको MSME रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। लोन विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी, जैसे हमने अभी बात किया सेंट्रल CGTMS स्कीम में, जो आपका जब आप विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी आप जाएंगे तो 2 करोड़ तक आपको विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी का लोन मिलेगा। उस टाइम में भी आपको MSME सर्टिफिकेट रहना बहुत जरूरी है।
सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन, आपका बिजनेस का कुछ आपने पेटेंट के बारे में हम लोग अभी स्टडी किया, आप कुछ पेटेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए गया, उसका जो फीस है उसमें भी आपको कंसेशन मिलेगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो उसका इंटरेस्ट बेनिफिट आपको मिलेगा, कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा, कुछ एरिया में एमएसएमई के लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी उधर कंसेशन दिया हुआ है, उसके लिए भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और प्रोटेक्शन डिले पेमेंट, जैसे आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन से आपका कस्टमर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में रहे तो आपका जो पेमेंट है वो विद इन 45 डेज में एनी कंडीशन देना ही है उनको, बाकी टाइम इसमें 90 डेज का आपका क्रेडिट पीरियड होता है। बट आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है, आपका सपोज कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको कंडीशन से आपको विद इन 45 डेज में पेमेंट करना ही है। आईएसओ सर्टिफिकेशन चार्जेस का भी रिइंबर्समेंट होते हैं, सपोज आपने एमएसएमई का सर्टिफिकेट आपके पास हुआ तो इजी टू एक्सेस क्रेडिट एंड मुद्रा लोन भी आपको मिलेगा उसमें से। अवेल 50% सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप जाएंगे तो उसमें भी आपको 50% का कंसेशन उसमें मिलने वाला है। एमएसएमई सर्टिफिकेट का बहुत बेनिफिट है, सपोज आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको करके लेना है। आज हम लोग ये 2 चैप्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने रीड किया हुआ है, इसका रिलेटेड कुछ क्वेरीज है आपको, आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वी हैव अनदर 2 to 3 minutes. You can raise your hand if you have any queries related to these chapters. You can raise hand. I will unmute you. You can ask the questions. If you have any queries, you can also post in groups. Know your balance sheet. It will be open up to 8. So you can having any queries related to this chapter, you can ask the questions. Thank you very much for all you are giving time, and thanks to Anjali madam, you are also part of this books reading session. Thanks to all, and we will meet next Thursday with the new chapters. Understand your CIBIL score. CIBIL score next chapter is very important, and you also share the link more to more your friends. The CIBIL report is very important for everyone, not only businessmen. It is helpful for all normal those who are doing business, salary holder, professionals. CIBIL score, what is the CIBIL score, how we will maintain, the next chapter is very important. We will meet next Thursday. Thank you very much for your time. Thank you very much. We'll close the session.